Allies हो गया, Hmm, restriction, restrictions. restriction का क्या clause होता है? Restriction. बताया था restriction? रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलोगे क्या? नहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है वही। नाल वैल्यूज हुआ हाँ नाल और एम्प्टी ये सब बोले थे और और क्या और कुछ नहीं हुआ था। और कुछ नहीं बताते हैं? यही सब हुआ था आज। कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। रेस्ट्रिक्शन में आप लोग को एक क्लॉज नहीं बताए थे? अच्छा वेयर, हाँ वेयर हुआ था। हाँ वेयर क्लॉज जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन, किसका रेस्ट्रिक्शन करने के लिए? रोज का। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन बताया है। नेक्स्ट, टुडे we will start with concatenation operator. Okay, so what is concat or concatenation? What does this term mean? What does this concatenation mean? to add Anyone? more things. Yes, I add something or I add anything. Okay, so concatenation means to connect things. Yes. Or in other term, we can say concatenation is a term used to link things to each other. Okay. Now, where we use this concatenation operator? Okay. First of all, concatenation operator is represented by two vertical bars. Okay. Vertical bars. And second point, it is used to connect, or we can say add more than one or more than one column. Okay. So these are the basic things what concatenation operator do. Okay. Suppose if I want to, suppose there is a table containing role, name, job, fetch, name, job, sal. Okay. So 1, 2, 3. These are the data A, B, C, and job here we can say student, teacher, okay, principal, okay, principal, and salary suppose 100, 200, 300, okay. These are the data in a table. Suppose if we want to know only the name and the job of a particular person, what is the command we use? What will be the command? Generally, we used to write it as select name, comma job from, suppose this is EMP table,
Then EMP, Where? where generally we are using this command for retrieving all the person's data. So we use this command select name job from EMP. Okay. So our data will be retrieved in the form of this name job. Okay. A, B, and C. This is student. This is teacher, and this is principal. This will be the command. This will be the output for this command. Now, suppose if we want to see this same data in one column, only one column. Okay. So, in this case, we use concatenation operator. Okay. Now, how we gonna use this concatenation operator? How we should write commands by using concatenation operator? Suppose same scenario, we have to retrieve name and job of all the person. We can write command as select. Okay. Then what we can write? Select name. Select name, because after select we need to give the column name. Okay. Then this to bar 5. Then this concatenation operator. Then we use this concatenation operator symbol. Yes. Okay. Then the And other after column that, name. the other column name which we want to use in a single column, that will be retrieved after executing this command. That column name will be here after the concatenation operator sign. Okay. And after that we can write from. Okay. Yeah. And the table name. Okay. This will be the command. Suppose now I'm just wait a minute. I'm starting the machine first. Okay. Shiny. Hello, are you there? हाँ सर बोलिए. So now please lead us in database login process. What is the first step? Hello. Okay. Anyone would like to try in database login process? Would like to contribute in giving me the steps? .orinb dot space dot space Dot space or INV? और SID पता है ABCD
Then SQL plus then space as space DB है Oracle then Oracle पासवर्ड दे दिया तो हाँ ये स्टार्टअप करना पड़ेगा. ये सब आपको याद रहना, मतलब ये सब आपको याद कर रहना चाहिए, आपको सपना में भी दिखना चाहिए, ABCD की तरह याद रहना चाहिए. Next. Next CONN Scott Tiger. आपके बोलने से पहले लॉगिन कर लिया. Sure. ठीक है. Okay. ठीक है. Now we have retrieved all the data of EMP table. So now what was the question that we have to add this column in the single column. We need to represent it in a single column. So we use this concatenation operator with writing this command. Yes. First of all, select, then column name 1, and after that we use the concatenation operator. Next, the second column name. Okay. Next, from EMP. Okay. You can see we are getting the data in a single column. Of which type of data? 2 columns. The data of the 2 columns are represented in 1 column and giving us the output in 1 column. Okay. So suppose by using this concatenation operator, we can add one more column as well. Suppose I am giving salary. Okay. From EMP. Now you are getting the data of all the 3 columns in a single column. Okay. So these are the commands by which you can retrieve different columns data in a single column by using concatenation operator. Okay. Now for concatenation operator, there is one more major property, that is concatenation operator. In concatenation operator, we can use literal string as well. Okay. Now what is literal string? Do you know about literal string? Anyone? Yes or no? no sir. हाँ, तो ये सब जल्दी जल्दी आप लोग बोलो तो क्लास भी जल्दी जल्दी होगा, है ना? यस और नो आप लोग बोलो. आप वो बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? चलो फिर literal strings. Okay. These we will see about literal and then we will see about strings. Okay. So what does literal mean? Literal basically is a data that is a character, or it can be number, or it can be date too. Okay. That is
that is included in select statement. Okay, clear everyone? Basically, literal is a character that we use in a select statement. Literal is maybe it is a character, maybe number, maybe date. We are using extra characters, extra number, extra date in select statement, or we want to retrieve the data in the form of literals by adding that literals, and we want to see the data, see the outputs in the by including that literal. We use this literal, so that is the literal which we use in a select command. And now strings. Coming to strings, what we can say, whatever we write, okay, whatever we write literals, basically we write literals, okay, and if we put a single inverted comma or single quotation mark, okay, if we put single quotation mark in this literal, then this literal with a single quotation mark will be termed as strings. Okay, any doubt? No. लिटरल क्या है? लिटरल कैरेक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, जिसे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में रखते हैं. ठीक है, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर आप रखना चाहते हो वो. और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? जो भी आपके लिटरल्स होते हैं, अगर उसमें कोटेशन मार्क मैं दे देता हूं तो वो मेरा स्ट्रिंग्स हो जाता है, और इन दोनों के कंपैरिजन को मैं लिटरल स्ट्रिंग्स कहता हूं. ठीक है, Okay. ये होता है. जनरली लिटरल स्ट्रिंग इज this plus this. Okay, now it is the main function, a very efficient function that we can use literal string in a select statement. Basically, we can't use literal string in a select statement, but by the help of concatenation operator, we can add this literal string in the select statement. Okay, now how we can add this literal string? Suppose if I want to add name and job, the data that is retrieved will be in this manner. Suppose Smith and salesman. Yeah, is it meaningful for us that Smith and salesman all are concatenated? Okay, but we can't say what is the name, what is the number of, or what is the length of that name. Basically, I know that Smith is 5 character, 5 letter word, okay, and salesman are remaining, but after concatenation, we can't be able to say, suppose in this name of the person could be Smiths as well, or Smiths as well. We can't say. Okay, so if you provide this literal string, we can say, we can get this output in a efficient manner. Suppose if I want to, suppose here we can, if we want to write Smith is a salesman, if this is the output, we can say this is very clear for us that the Smith, a person named Smith, is a salesman in a particular company. That will be efficient output for us. That will be understandable. Okay, so Okay. for this purpose we can write
this, if we want to retrieve the output in this manner, Hmm. we need to add literal string. That Hmm. literal string will be this, Is because there. this is the literal, this is Mhm. literal. Okay, this is the literal, because why it is literal? Because we do not add this single quotation mark in it. Okay, so basically this is only literal, not strings. Okay, basically we call it as strings as well. Yeah, but basically we call it as literals. So after that we execute a command in this manner: select name, Name. then we Com- give concatenation operator sign, and Single after quote. that we used to write the second column name. But here you can see Smith is of column name 1 and salesman is the data of column name 2. Okay, so but between this there is a literal. So before joining it, we need to provide the literal in between the column name 1 and column name 2. Oh. So we provide this in this manner. Is Yeah. then TMP means table name. Now we can say if we execute this command, we will get to see this manner data that will be retrieved. Okay. So let us try. So select name. Okay, then is okay, then from. It is clear. Mhm. Okay. Now anyone can say that why this is an A is in lowercase. Because this is written between this invited comma. So as it is, I mean, printed In over here. inverted comma we write it in a lowercase, so the data that is retrieved will be in a lowercase. Lowercase. But ename and job column has the data in uppercase, so that will be remain in uppercase. Okay, Hmm. and now I have told you about the restrictions. You can use restriction as well in this concatenation operator. Mhm. We can give the restriction. Suppose if we want to see only the data of king. Okay, if we want to see only king's data. Where rename is equal to key. So we will give where clause, and after that Ename is equal to quotation mark and king we can in give the uppercase. any column name that is available in the table as your wish. You can use any other column name. Suppose there is hire date, sal, com, department number. Okay, so I am giving the sal. Okay, where sal equal to 5,000. Hmm. This is the data. This is the salary for king. Okay, whose job is president. Clear concatenation operator. One point should be noted. Okay, that the data and character must be enclosed in single inverted mark. Okay, okay, yeah, Mhm. this should be noted. अच्छा इसमें जो टोटल जो कॉन्केटेनेट होने के बाद टोटल जो कॉलम नेम है इसको अगर मैं एलाइज करूँ तो वो एक ही दिखाएगा ना उसमें Yeah, I was just forgot to say you about the alias.
We can give the alias name as well in this. Okay. Hmm. Suppose this, and I'm giving this and job. After this This, yes, we can statement, we can give alias name as well. place name Suppose I'm giving alias name. How we can give the alias name? double quotation is the best. I mean, or as whatever it is. These are the two methods, by giving as and by giving Double quotation. okay. And also, if we not give as, and if we not give inverted comma 2, we can give the alias name. Okay. How? Just after giving a space, give the name. Suppose I'm giving detail. Okay. Details from EMP. You can see Hmm. alias name is here that I provided in this statement, that is details. So basically, there are three methods to give alias name. Okay, one is from as, second is by giving inverted comma, and third is without giving any as and any inverted comma. Inverted Okay, comma. just simply after giving space, write the name of the alias. Okay, before the And if we, I mean, write like this way is allies, then we can also put space, or it is not possible. I think not possible. I mean, details, EMP, and between these two, given if we want to give the space, it is possible like this manner, or after what? I mean, if we do not use any as or double inverted comma, just like this, I mean, like details, then details EMP. I want to show the airline's name. So between details and EMP, if I want to give the space, so I should use the double inverted comma only this method, or like this way we can print. Like this way, by using double inverted comma, you can use any of them. Okay. But just give a space bit after the column name Data. Yeah. where you want to, of which you want to change the name. Okay. Okay. So this part is complete. Now let us see about duplicacy. Okay. Is there any duplicate row in the EMP? Is there any duplicacy in the rows in the data Yes. of Yes. any column? In Like which column you can see like job have the duplicate, or no, salary doesn't have, only job, salary is having, and department number also have. basically salary is having the duplicate data, department number is having the duplicate data, And job. job is also having the duplicate data, but EMP number has no duplicate data. MGR have the duplicate data. Okay, basically in this we have 1, 2, 3, 4 columns having duplicate data. Now if we retrieve suppose GPT number, if we want to retrieve this GPT number from EMP, we're gonna see all the 14 rows with duplicate data. Now there is a situation, your superior called you and asked you that could you tell me that how many departments are there in this company? Okay, so how could you provide the data in this manner, or you can give it in non-duplicate manner? Non-duplicate manner. Means you give him this data, he will just find
Okay, because he has no time to count this duplicate data. How many duplicate data are there? Okay, these are the 16, only, I think. there is only 14 rows, but Mhm. in normal company there may be 1,000 to 20,000 employees and their department number as well, which are duplicate to each other. So for getting non-duplicate data in a single column, we use a keyword named distinct. Okay, to Distinct. get distinct data, we use the keyword distinct. So to eliminate any duplicates see in a column, we use distinct just after the select. Means select distinct. Okay, select distinct. Suppose DPT number from EM. Okay, now you can see only 3 departments are there in a EMPD. Okay, that is 10, 20, and 30. Yeah. From this way, we can eliminate the duplicacy from any column by giving that by using this distinct keyword. Hmm. Okay, Hmm. everyone here. Yes, sir. Now, have I told you about how to see the structure of table? I mean, describe. Yeah, describe. Yes, you told. Okay. So, if we want to see the table structure, if we want to display any table structure, any kind of table structure, or any type of database objects, we use this describe. Okay, describe command. That is DSC, either this or either you can see the table structure. Clear? Yes, sir. Now, let us see now comparison. Okay, let us come to comparison. Comparison operator. Now, comparison operator. What are comparison operators? Comparison operators basically equal to is a comparison operator. We can say greater than is a comparison. The data which we want to compare, we compare with this kind of, suppose if you say in my account there is less money as compared to your friend. Okay, so we use this or either this or this or yeah this operator. Yeah, Hmm. suppose my account, we can write it as my account is less than your friend's account. Okay, we can write it in this manner. So we are comparing both the accounts. Yes, sir. Okay, so that is the comparison operator. Hmm. So what can be the comparison operator? Other comparison operators. One is Equal to, greater than, less than, second greater will than, be equal to, greater less than, than. third will be less than, fourth Greater than, equal to, greater than equal to, fifth less than, equal to, less than equal to, not and equal, sixth not equal. not equal. How
how we used to write not equal to? Less than or greater than Is there a, 2. Yeah. No. not in this one? Uh, this less than and greater than this bracket Less symbol. than and greater. Yeah. Yes. This way. Okay. We can also write not equal to in other form. Do you know, sir? Yes. It's semicolon equal to. Semicolon. Not semicolon. It's what it's exclamatory mark. Yeah, and equal to. Is that. Okay. So we can also use exclamation mark equal to for not equal of operator. Okay. One more. There is one more for other form for not equal. Do you know, sir? Not in one keyword is here, but Upper and okay. No, I don't know. these are the three forms we can use as not equal sign. Okay. In this oracle. Okay. In this sequence. Yeah. Now let us see one by one all the operators in the machine. Okay. So suppose I'm giving a situation. Suppose if we want to retrieve the e-name and salary from employee table, okay, from MP table, and the employee salary is less than or equal to 3,000. Okay, what will be the command? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ. हमें डिस्प्ले करना है लास्ट नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जिसका सैलरी लेस देन और इक्वल टू हो 3,000 से. तो आप रुक जाओ, बाकी सबको ट्राई करने दो. क्या कमांड होगा? कौन कौन है अभी? सोनू आप हो? सर से उसका कमांड होगा शायद सिलेक्ट सैलरी नॉट मैं साथ साथ लिखता हूँ, रुको. सेलेक्ट सैलरी नॉट इक्वल्स टू. सैलरी नॉट इक्वल टू. आपने क्वेश्चन बोला, एक बार रिपीट करेंगे? वो क्वेश्चन बोला कि इफ यू वांट टू रिट्रीव द नेम एंड सैलरी फ्रॉम द एएमपी टेबल and the employee salary is less than or equal to 3,000, or you can keep it any data, 2,000, 1,000. Okay. अच्छा, सिलेक्ट नेम. Okay, name. कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो था वो देंगे. Concatenation operator. इज अ जॉब और सैलरी दोनों ही देंगे ना? Is a. हाँ, उसके बाद जॉब. Okay. ना सैलरी, सिर्फ सैलरी देंगे या जॉब भी देंगे? आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ. We want to retrieve the name and salary of employee. अच्छा. Retrieving means what? मेरे को डेटा चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय का नेम एंड सैलरी का. मतलब हिंदी में बोलूं पूरा अच्छे से, तो मेरे को उस एम्प्लॉय का
डेटा चाहिए, अच्छा। उस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी चाहिए जिसको 3000 या फिर 1000 से कम मिल रहा हो और या तो 1000 मिल रहा हो। अच्छा, तो वो कोटेशन के अंदर होगा इज नहीं होगा, वो सैलरी इज बोल के होगा। सैलरी इज फिर उसके बाद सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 5000 फ्रॉम ईएमपी। ये वाला साइन होगा कि ये वाला साइन होगा? आपने लेस देन इक्वल्स टू बोला था ना। हाँ, ये हाँ, sign तो यही वाला होगा। हाँ सपोज 1000 दे देते ना। हाँ, फ्रॉम ईएमपी। ठीक, हो गया, एंटर करें। हाँ हाँ, आपने तो सिंटेक्स तबाह कर दिया पूरा। चलो फिर सुमित आप ट्राई करोगे। Sir, select space ename, सेलेक्ट space ename, comma cell, सैल, comma cell, फिर से less सैल, than, फिर लेस देन, less than equals to 2000, इक्वल टू 2000, space from EMP. ईएमपी। Okay. अब और कौन बच गए? सर सेलेक्ट, हेलो सोनू, हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। सेलेक्ट सेलेक्ट ईनेम ईनेम सेल सैल, सर ईनेम सर स्पेस देखे सर ठीक है, फिर देखिए सर फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, सर सेल इज नॉट लेस देन सर लेस देन सैल इज लेस देन, लेस इक्वल टू तो बोले थे सर 3000 सर 3000, फिर यस उसके बाद एंटर। सर सेमीकोलन नहीं डालना। हाँ सर सेमी कॉल चलो और कौन बच गए? मैं आप रुक जाओ, आपको तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। शाइनी आप तो बता दिए ना। सुपर हाँ मैम सर, आप ट्राई करोगे क्या? बता देना। आप सर ट्राई बोलिए। करोगे? तो थोड़ा आप ट्राई करो। करना चाहूंगी, होता हाँ, है कि बोलिए। नहीं देखते हैं। सर सिलेक्ट ई नेम, कॉमा देके सेल, उसके बाद स्पेस देख के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेल, सेल लेस देन सिंगल सॉरी या डबल? लेस देन सिंगल या इक्वल डबल? इन्वर्टेड कॉमा नहीं सिंगल या सिंगल डबल? में ठीक है, सेल। सिंगल ओके सेल, लेस इक्वल टू 3000 ओके क्लोज किया इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम ईएमपी ईएमपी, ओके सेमीकोलन नेक्स्ट सेमीकोलन चलो, देखते very हैं, good. नहीं आया। नेक्स्ट और कौन बच गए हैं? आतनु बचे हुए हैं और शाश्वत बच गए। शाश्वत तो कर लेंगे। आतनु आप ही बताओ, आप ही बच गए। सिलेक्ट सेलेक्ट स्पेस ईनेम ईनेम कॉमा कॉमा सेल सेल फ्रॉम ईएमपी फ्रॉम ईएमपी वेयर वेयर सेल लेस देन इक्वल टू 3000
आप सेमीकोलन दे के ये तो हो जाएगा, और इसको अरेंज करना चाहे तो ऑर्डर बाय सेल भी लगा सकते हैं। बस 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 आप हो गया, आप ज्ञान बचा रहे हो। नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब सबका गलती बताते क्या क्या गलती हुआ। ठीक है, सबसे पहले साइन ही आते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में कॉन्कैटिनेशन ही ऑपरेटर क्यों हिट कर रहा है? ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाने का जरूरत नहीं है। अगर मेरे को दो कॉलम को एक कॉलम में देखना है तो मैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा सकता हूँ। अगर मेरे को लेटरल स्ट्रिंग यूज करना है तो मैं उसको लगा सकता हूँ। ठीक है, नहीं आपको क्लियर है? और हाँ सर। यहाँ पे हम जो कंपैरिजन कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, जो भी कंपैरिजन कंडीशन लगाएंगे वो हम लोग टेबल नेम के बाद वेयर क्लॉज में लगाएंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? रेस्ट्रिक्ट करो ना डेटा को। हाँ ब्रो को क्या बोल रहे हो कि मेरे को उसका वैल्यू दो जिसका सैलरी 1000 से कम हो या फिर 1000 हो। तो यहाँ पे मैं डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मीन्स बाकी जो 1000 है या 1000 से कम है उसका डेटा देखना है मेरे को। 1000 से ऊपर का डेटा तो नहीं देखना है, तो वो सब ट्रिम होके बाहर चला जाएगा। मीन्स वो सभी का डेटा मेरे को नहीं मिलेगा, है ना? तो एक तरह से ये रेस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो वो रेस्ट्रिक्शन को अगर मेरे को यूज करना है तो वो किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन है? रो रेस्ट्रिक्शन है। हाँ। अब उस रो रेस्ट्रिक्शन को कैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं? वेयर क्लॉज डाल के अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन करते हैं रोज का, तो इसमें क्या होगा? जो हमारा ये होगा, जो भी कंपैरिजन कंडीशन आप लगाओगे वो वेयर क्लॉज के बाद लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका डाउट? और सिंटेक्स हाँ, देखो आप, सिंटेक्स देखो, सेलेक्ट होता है, कॉलम नेम पूछता है। ठीक है, कॉलम नेम में आप नेम दे दिए, ठीक है, फिर कॉमा देके जॉब दोगे, ठीक है, उसके बाद फिर फ्रॉम ईएमपी दोगे। इतना तो वो रिट्रीव करेगा कितना? मैं लिख के दिखाता हूँ। ये देखो सब कोई, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी। इतना मैं लिखा, इतना अगर लिख के एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा? सारे ई नेम और जॉब का डेटा मेरे को यहाँ पे दिखेगा। हाँ, टोटल 14 रोज का डेटा है तो 14 रोज दिखेगा यहाँ पे, 14 रोज का डेटा दिखेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरा तो इतना कमांड इतना काम कर चुका बैकएंड में। ठीक है, अब मेरे को क्या कंडीशन था? मेरे पास क्या कंडीशन था कि सैलरी जो है वो मेरे को या तो 1000 या फिर 1000 से कम का देखना है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, मीन्स रेस्ट्रिक्ट करें रो को, तो वेयर ऑब्वियसली लगाना होगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। अब वेयर लगाए हैं, उसके बाद क्या करेंगे? हम कंडीशन देंगे। वेयर के बाद कंडीशन देते हैं हम लोग, सिंटेक्स में है वेयर के बाद कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन हमारा क्या होगा? सैलरी पे कंडीशन है। क्या सैलरी पे कंडीशन है? लेस देन इक्वल टू का कंडीशन है, और 1000 का अपना लिमिट है। और इसको इतना लिख के आप अगर करोगे तो यहाँ पे जितना भी 1000 होगा या फिर 900 होगा या फिर सपोज 5000 भी था, 3000 भी था, तो मेरे को किस किस का वैल्यू देगा? 1000 देगा, 900 देगा। मीन्स 1000 एंड 900 का वैल्यू मेरे को आउटपुट देगा, और बाकी 5000 और इधर 3000 का जो डेटा है उसको नहीं शो करेगा। ठीक है, यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं, और एक प्रॉब्लम है शाइनी, आप देखो, आप ईएमपी टेबल यूज कर रहे हो। अब ईएमपी टेबल यूज करो तो ईएमपी टेबल के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा टेबल है, कौन कौन सा कॉलम है, कौन कौन सा कॉलम का नेम है, कैसा कैसा टाइप का डेटा है उसमें। तो हमारा नेम करके कोई कॉलम नेम है? अब देखो, यहाँ पे जो कॉलम नेम होता है उसी को लिखना पड़ता है, अपने से नेम नहीं देना होगा।
अगर आप एलाइज दे दिए हो, कॉलम का एलाइज नेम आप चेंज करके नेम कर दिए तो आप नेम यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस को मतलब जस्ट इस कमांड के लिए आप चेंज कर सकते हो, बाकी परमानेंटली नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ आपका ये? नेक्स्ट हाँ। किसका था? नेक्स्ट सुमित का था ना? हाँ सर। हाँ, आपका वही प्रॉब्लम है। आपका क्या बोला था कि ये जो कंडीशन होता है वो वेयर क्लॉज के बाद लगता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का कंडीशन है। तो फ्रॉम ईएमपी के बाद वेयर के बाद हम लोग वो लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसका था? सर मेरा। हाँ, आपका क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कॉमा नहीं दिया कॉलम के बीच में, ठीक है। यस सर। और आपने इधर एम्प्लॉय टेबल यूज किया है ईएमपी टेबल के जगह, ठीक है। नेम आपको देखना पड़ेगा ईएमपी टेबल है कि एम्प्लॉय टेबल है, दोनों डिफरेंट टेबल भी हो सकता है, ठीक जी है। सर। अभी हम दिखाएंगे तो एचआर यूजर में एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, उधर ईएमपी टेबल नहीं मिलेगा। और इधर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, रेस्ट्रिक्शन का कंडीशन दे दिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन किसको देना है, कैसे देना है, वो बताइए नहीं कि ये रेस्ट्रिक्शन है कि क्या है, ठीक है। आप कंडीशन दे दिए रेस्ट्रिक्शन का, बट आप रेस्ट्रिक्शन देने वाला चीज ही नहीं दी। सर मुझे आया था। हाँ, सर मुझे इसका आया मीनिंग था। वही हुआ कि आप जो एक कार खरीदे, ठीक है, वो कार का मॉडल तो खरीदे लेकिन उसका इंजन ही नहीं खरीदे, ठीक है, ऐसा था। नेक्स्ट किसका था? सुपर्णा का। आपको तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये सब इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा कब यूज करना है? जब भी हम लोग कंडीशन में अगर कैरेक्टर और डेट स्ट्रिंग लेके आए तो, ठीक है। जहां भी हम लोग कैरेक्टर या डेट का डेटा यूज करेंगे फॉर रिट्रीवल प्रोसेस और फॉर इंसर्शन प्रोसेस, वी नीड टू गिव दिस इन्वर्टेड कॉमा। And which type of inverted comma? Single inverted comma. And for column alias name, we use double inverted comma. Okay. Clear? यस यस। Yes, sir. Clear हो गए? अब शाश्वत आप हो? हाँ सर बोलिए। आप देख रहे हो ना, ये सब तो किए हो ना? हाँ देख रहा हूँ। हाँ सब किए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो हाँ इसी तरह से हम नेक्स्ट सारे कंपैरिजन कंडीशन को यूज कर सकते हैं। सपोज हमें चाहिए सिर्फ मेरे पास कंडीशन आया कि मेरे को एम्प्लॉय का डेटा दो, एम्प्लॉय का डिटेल्स दो जिसका सैलरी 5000 है, ठीक है। क्वेश्चन समझे? यस सर। तो क्या होगा इधर? मेरे को एम्प्लॉय का डिटेल दो जिसका सैलरी 5000 है, उस एम्प्लॉय का डिटेल दो। तो यहाँ पे क्या कमांड लिखूंगा बताओ? आखिर तो अभी आप मुझे बताना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिएगा सर। बोल रहा हूँ कि आप मेरे को एम्प्लॉय का पूरा डिटेल दो जिसका सैलरी 5000 है। तो सिलेक्ट स्पेस स्टार। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? सुमित। ओके, सेलेक्ट स्पेस स्टार फ्रॉम ईएमपी ईएमपी वेयर Sumito. वेयर वेयर सैलरी 5000 है सर। हाँ, सैलरी मैंने 5000 बोला। तो सैलरी सेल इक्वल्स टू 5000 सैलरी इक्वल टू 5000, सेमीकोलन। एंटर। क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों को दो चीज नोटिस करना था। एक तो सैलरी कौन सा है, मतलब कितने का सैलरी का डेटा देखना है, ठीक है, जिसका कौन से एम्प्लॉय का सैलरी का डेटा देखना है, ठीक है। तो वो 5000 का डेटा देखना था मेरे को। और पहला जो क्वेश्चन, पहला लाइन में जो बोला कि मेरे को एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि नेम चाहिए या जॉब चाहिए या सैलरी चाहिए, मेरे को चाहिए डिटेल, मींस फुल डिटेल। फुल डिटेल के हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्टेरिस्क साइन, Star. ठीक है। ऑल कॉलम्स मेरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके मतलब रिट्रीव करके देगा, ठीक है।
इसी तरह से आप बाकी सब कंपैरिजन कंडीशन को यूज कर सकते हो। क्लियर है? एक एक करके दिखाएं। नहीं तो ठीक है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं। Now we have some more comparison condition. Okay. First one is between. Between and. Okay. Second one is in comparison. That will be third is like and only this between and in and like. नॉट इन नहीं होगा क्या? हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि नॉट इन नहीं होगा क्या? Not in. कर सकते हो? वो बताएंगे अभी। Suppose I have a question that if we want to see the detail of all the employee which salary is between 1,000 and 2,000, then we will write the command as select star where sal. Okay. Where Between sal, then between. Next 1,000, 1,000, 1,000 and then space and then space 2,000. So by giving this command, we will get the data between 1,000 and 2,000. Okay. Yeah. And this 1,000 and 2,000, it is also inclusive. Means अगर इस पर्टिकुलर डेटा में अगर 1,000 और 2,000 का सैलरी भी होगा तो उसका भी डेटा होगा। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर ये टेबल में 1,000 और 2,000 का कोई सैलरी है यहाँ पे बोलने की। ठीक है? क्या? Next, comparison condition. Okay. So every सब कुछ सेट्स पड़ेगा मैक्सिमम सेट्स क्या बोल रहे थे? आवाज ये नहीं ऐसा टर्म होता है मैथ्स में। सेट्स पढ़े? हाँ। यूनियन इंटरसेक्शन ये सब पढ़े? हाँ, ये सब शॉर्ट में बता दें। सर आवाज ठीक से नहीं आवाज ना बहुत बहुत लो आ रहा है। मेरा हाँ हेलो। हाँ अब ठीक है। तो बोल रहे कि आप लोग पढ़े इसको कभी देखे? हाँ हाँ तो आता है, किसको नहीं आता है?
नहीं तो मैथ्स क्लास देंगे अभी। बताओ। सर नहीं आ रहा सर। फिर ठीक है। सपोज एक कमोडिटी है मेरा और एक कमोडिटी है, ठीक है। एक कमोडिटी में सपोज आप हैं, अतनु और सुमित है, और दूसरे कमोडिटी में साइनी है और कौन बच गया, और सुपर्णा मैम है, ठीक है। तो ये आप लोग कौन से कमोडिटी में हो? मेल कमोडिटी में। ये किस में है? फीमेल कमोडिटी में, ठीक है। तो आप लोग क्या किए कि अभी मेरे क्लास में आए हो, ठीक है, मेरे सेक्शन में हो, ठीक है, ऑनलाइन सेशन, ठीक है। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन सेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन सेशन, तो इस ऑनलाइन सेशन में कौन कौन है बताओ? आतनु है कि नहीं है? है ना? हाँ सुमित है, शाइनी भी है, एंड सुपर्णा मैम भी है। तो ये सब क्या करने आया है? इस ऑनलाइन सेशन में आए। तो ये सब क्या हुआ? ये सब एक सेट में हो आप लोग, मींस ऑनलाइन सेशन के एक सेट में आप लोग बैठे हुए हो, जिसका 5:30 से चलता है क्लास, है ना? तो बेसिकली मैथ्स में क्या रहता था कि सपोज एक कम्युनिटी 1 2 3 4 है और दूसरे में 5 6 है या 4 5 6 है। तो अगर आपका फुल कम्युनिटी कितना है तो वो कैसे सेट करते थे? एक कर्ली ब्रेस देते थे, 1 2 3 4 करके देते थे, ठीक है, एंड 5 एंड 6। A यूनियन B मींस होल कम्युनिटी, और सभी को एक साथ कर देते हैं, और A इंटरसेक्शन B होता था। सपोज ये A कम्युनिटी है, B कम्युनिटी है, तो A इंटरसेक्शन B क्या कहता है? जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस जो दोनों कम्युनिटी में सेम है, मींस 4 सेम है, यहाँ पे वो कम्युनिटी में 4 सेम रहेगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली। वही केस है इसमें, ठीक है। इन सपोज मेरे पास सैलरी है, $100, $200, $300, $400, ठीक है। और इसका मिनी डुप्लीकेट भी हो सकता है ना? 100, 300, 200 ऐसे करके हो सकता है। अब इन ऑपरेटर क्या होता है कि इसमें हम कुछ स्पेसिफिक सैलरी को रख सकते हैं। सपोज इन दिया, अब ब्रैकेट के अंदर मैं सपोज मेरे को देखना है कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 100 है और 200 है, ठीक है। तो 100 200 है, तो इसका कितना डेटा मिलेगा यहाँ पे? एक तो डेटा 100 का इधर है, एक डेटा इधर है 200 का, फिर इधर है 3 है और ये 4 मीन्स यहाँ से 4 डेटा मेरा रिट्रीव हो जाएगा, जिसका सैलरी क्या है? ओनली 100 एंड 200, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आया? हाँ, हाँ अभी सर। करके बता, अभी करके बताता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मेरे को चाहिए अब यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या? सपोज मेरे को देखना है कि 1250, 800 और 3000, ठीक है। इन ये तीनों सैलरी में जो जो एम्प्लॉय है उसका डिटेल बताओ। तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टाफ हाँ
where अब यहाँ पे कंडीशन देना है, कंडीशन किस पे, सैलरी पे है, मेरे को सैलरी का देना है। सैल के बाद इन देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्या देंगे, जो सैलरी मेरे को रिट्रीव करना है, 800 1250 एंड सपोज 1000, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओनली 3 डेटा। यहाँ से 800 जो है 800 का रिट्रीव किया, क्योंकि यहाँ पे 800 का सेट में मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1250 का सेट उठा के दिया, लेकिन 1250 दो सैलरी है, 2% जिसको मिलता है 1250 सैलरी, तो उन दोनों का ही वैल्यू मेरे को शो किया। और यहाँ पे 1000 है, 1000 का क्या है, 1000 जिस एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस ईएमपी टेबल में, ठीक है, तो उसका कोई डेटा नहीं आया क्या। ऐसे करते करते आप डिफरेंट सैलरीज में डाल सकते हो जितना आप देखना चाहते हो, जितने का डेटा देखना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आए कंपैरिजन कंडीशन में। नेक्स्ट है लाइक। लाइक एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। अब सपोज मेरे को सर्च करना है किसी को, ठीक है, ये एक तरह का वाइल्ड कार्ड सर्च करते हैं इसको। इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग, सपोज आपको मैं सिचुएशन देता हूँ, मेरे को ये बताओ कि मतलब कोई आप सीनियर आपके पास आया, ठीक है, आपसे पूछा कि मेरे को ये बताओ कि इस कंपनी में एस नाम से कौन कौन एम्प्लॉय काम करता है। अब जो सीनियर आपके पास आया है, जो ओनर आया है, वो उसको तो सारे एम्प्लॉय का नेम तो नहीं पता होगा ना। तो वो क्या बोला आपको आके कि मेरे को ये, और आपको भी नहीं पता होगा। सपोज 1000 एस नाम का होगा तो सबका नाम आपको याद होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, वो क्या करता है, वो आपको आके बोला, अब आप बोलोगे तो कि एस नाम करके तो कौन है मेरे को भी नहीं पता। तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, अगर डेटाबेस में आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है सब एम्प्लॉय का, तो आप यूज करोगे ये लाइक, ठीक है, लाइक कंडीशन यूज करोगे। तो कोई भी चीज आपको सर्च करना हो तो वो इससे कर सकते हैं, कोई भी रिलेटेड डेटा, ठीक है। अब इसमें दो चीज आता है, ठीक है। अगर कोई लिटरल आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो, लिटरल कैरेक्टर या नंबर, लिटरल बताया ना, कैरेक्टर नंबर या डेट कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन था क्या, सीनियर आपसे क्या बोला कि मेरे को उस एम्प्लॉय का डेटा तो जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एस के बाद आपको एक परसेंटेज मार्क देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा दे दोगे, इसका मतलब क्या होता है कि एस के बाद जितने भी लेटर्स के कोई भी पर्सन होगा, वो डेटा with the letter first letter of employee name is S, that data of particular employee will be written, okay। so ऐसे अगर हम परसेंटेज यूज किया, मींस परसेंटेज डिनोट्स 0 और other characters, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसे मैं देखता हूं करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर। अब यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन किसको देना है, इनेम को देना है, क्योंकि नेम मेरे को पता करना है। अब यहाँ पे कंडीशन में वही लाइक लगाते हैं, लाइक के साथ अब मेरे को क्या पता करना था, जिसका एम्प्लॉय का नेम एस से स्टार्ट होता। तो यहाँ पे मैं पहले, अब यहाँ पे देखो आप क्या यूज कर रहे हो, ये ई नेम किस डेटा टाइप का है,
ईनेम का क्या डेटा टाइप है? ईनेम में कौन सा डेटा टाइप बताओ जल्दी। हाँ कैरेक्टर है सर सर। कैरेक्टर टाइप ही तो है। तो है वो, आप लोग बताओ तो। कैरेक्टर है। हाँ मेरे को पता है। कैरेक्टर ही है। हाँ ठीक है, सब कोई बोल दिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने को बोला था, क्या बोला था नोट करने को? कोई भी कैरेक्टर या डेट है तो उसको कोटेशन के अंदर रखना, कौन से कोटेशन में? सिंगल कोटेशन। सिंगल तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, लिटरल यूज करेंगे ना, क्योंकि एस जो है वो मेरा डेटा नहीं, वो लिटरल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, एस देंगे, ठीक है, और परसेंटेज देंगे। यस। तो यहाँ पे मेरे को फिर सेमीकोलन देने के बाद अब बताओ क्या क्या डेटा आना चाहिए मेरे यहाँ। जिन लोगों का नाम एस से स्टार्ट है वो सब तो आप बताओ कौन कौन सा, किस का नाम एस से स्टार्ट है? स्मिथ है और स्कॉट है, बस स्कॉट दोनों है। हैं। हाँ स्मिथ दोनों और और कोई स्कॉट, नहीं है। तो यही दोनों का डेटा मेरे को मिलना चाहिए ना। एंटर करें। मगर ये स्मॉल है ना, इसको कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा डेटा है, जो आप लोग पहले ही बताया कि जो मेरा डेटा जो आप लोग डालते हो वो केस सेंसिटिव होता है। एस तो आपको कैपिटल क्या होना करना चाहिए। होगा, तो उसका केस सेंसिटिव अपर केस में है, एस कैपिटल। तो ये एस भी कैपिटल में करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टार करते हैं, अब आ गया। सिमिलरली आप यूज कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ लास्ट लेटर आपको पता हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज लास्ट लेटर है, सपोज मेरे को याद है कि उस बंदा का लास्ट लेटर था टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे, टी दे देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे तो टी करके कौन है, सिर्फ स्कॉट है, ऐसे रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये एक तरीका है, ठीक है, लाइक कंडीशन। अब यहाँ पे और एक चीज आता है, फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग परसेंटेज करके देखें, सेकंड और एक कंडीशन होता है अंडरस्कोर करके देखें, ठीक है। अंडरस्कोर क्या डिनोट करता है, वन कैरेक्टर को डिनोट करता है, मींस वन लेटर को डिनोट करेगा। अब सपोज आप बोलोगे, सपोज स्कॉट है, ठीक है, स्कॉट है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टू लेटर, सपोज बड़ा नाम है, छोटा सा नाम मेरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे आपको सिर्फ पता था कि उसका नाम एस टी से स्टार्ट होता था और टी टी से के खत्म होता था, ठीक है, और आपको बीच का नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दोगे, तो क्या होगा कि ये पूरा डेटा मेरे को रिट्रीव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके देखें, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एससी करेंगे, अंडरस्कोर करेंगे, डबल टी कर लेंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किया तो क्या आएगा, अभी कोई नहीं आएगा क्योंकि कैप अपर केस में देना होगा, यहाँ पे किया एस सी अंडरस्कोर दिया, टीटी दिया, और स्कॉट आ गया। ये एक अंडरस्कोर क्या डिनोट करता है, वन कैरेक्टर को, ठीक है। और ऐसे आप दे भी सकते थे, अगर आपको पूरे लेटर पता है, पूरे नेम का लेटर पता है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके दे सकते थे, एस दिया, उसके बाद फिर 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स आप दिया, आपने इधर अप्लाई कर दिया वो अंडरस्कोर को, एंटर किया, सेम मेरे को दिख रहा है, स्मिथ और स्कॉट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, दोनों का ही लेटर 5 है ना, 5 लेटर का ये वर्ड है, स्मिथ एंड स्कॉट। तो यहाँ पे क्या होगा,
मैंने भी यहाँ पे कंडीशन 5 लेटर का ही दिया, वो 5 लेटर उठा के दिया। सपोज यहाँ पे 6 लेटर दे देता हूँ तो वो कोई नहीं लेगा, क्योंकि 6 लेटर करके एस से किसी का नाम। ठीक है, ये था हमारा लाइक ऑपरेटर। और कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। आज यही तक बैठे हैं। बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है, नहीं, सब सर। क्लियर हो गया? कंपैरिजन खत्म हो गया, अरिथमेटिक खत्म हो गया, कंपैरिजन